मम्मी इधर आइए।
वीडियो दीजिए वीडियो। Hello, hello. ايوه فيها ابتدائي. Tahu bro. Seri atau स्टार्ट हो गई। चालू है। अभी सब लोग अभी अच्छा डांस कर चेक
वीडियो ऑन कर इसकी और माइक ऑफ कर। टीचर आया ही नहीं अभी। Good evening, class. How's everyone doing? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Everyone, please settle down. गुड इवनिंग मैम। How was your day? मैम it was very well. Was fine. Very good. Nice. Very nice. Okay, whatever I taught you yesterday, could you understand? Yes ma'am. Yes ma'am. Language? Yes, No ma'am. language problem? No ma'am. No ma'am. Okay, beta. I hope you made short notes. Did you make? Yes ma'am. Yes ma'am. Can I have a look? Can I see your notes? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, just put them on the screen. I just want to see. And put your names, 1+. Put your name. Very nice. Very good, beta. Rohan. Yes, Rohan. Very nice. Very good. Toshvik. Yeah, switch on your camera. Yes. Yes, Tejas, bring it closer. Bring it closer to the screen. Okay. Okay. Yes. Good, beta. Good. Very nice. Toshvik. Yes, very good, Toshvik. Rohan, can I have a look? 1+. Are you new? Yes. What's your good name? 1+. मैम मम्मा उसको कैसे करें? नाम बता दो। अरे अनम्यूट कैसे करें? इसको बेटा साइड में जहां पर आपका पिक्चर आ रहा है वहां पे यू विल सी 3 dots. Just use those 3 dots to do everything. Mute yourself. I don't want to listen to your family conversations. Please mute yourself. Okay, everyone is ready? Yes, Siddhant, you have also done. Very good. Garima.
Lutfilla, have you also done? Kumar Ayush, switch on your camera, please. Anika, very nice, beta. You made diagrams also. Very good. Pranavi, you are wearing a sari and studying? Huh, Pranavi? Can you hear me? Pranavi Jain? Okay. Vikrant, yes. Get ready, everyone. Today our topic, you can see it on the screen. Yes, ma'am. Arab, Sahil, switch on your camera. Who is this SAC, Vivo, Kunal? Kunal, switch on your camera. Who is this SAC and Vivo? What are these names? Your name is that? Unmute karo apne aap ko and please introduce yourself. Otherwise, I'll remove you from the class. Who is this SAC? कौन है ये SAC or Vivo? Hurry up. I'm waiting. Quickly. We have to start the class. Please do not waste the class time. आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे को लग रहा है ना Yes, this is batch H. I'm going to ask the institute. आप जो भी हैं, I'm going to send your this to the institute. SAC. Who is SAC? Who is Pankaj? Switch on your camera. Switch on your camera now. I'm saying something. अगर आपको कोई इशू है तो चैट बॉक्स में लिखिए. Yes. SAC. Ma'am, my name is Avyan Patwari. Yeah. Your name is? Avyan Patwari. Okay, Avyan. I am asking about this. Who is this SAC? What is this SAC? What is his name? Unmute yourself quickly. And please tell me, if you are acting like this, I'll have to remove you from the class. इस नाम का कोई बच्चा मेरे नॉमिनल रोल में नहीं है. So I'm going to remove you. जल्दी से बताइए. Otherwise, class leave करिए. Our time is very precious. Rest of you, please take out your notes. पेंसिल बॉक्स मेरे को कैमरा था तो पेंसिल बॉक्स तो बच्ची ये पेंसिल बॉक्स तो मुझे ये नहीं पेंसिल बॉक्स तो जल्दी तुम तो लेके आओ पेंसिल बॉक्स लेके आओ. I'm muting everyone now. Okay. H match. Today we will be studying about animals, okay? All these children whose camera is not on, I have noted down the names. Okay. Today we'll be studying about the structural organization of animals. जैसे हमने last time plants का structural basic structure किया था, वैसे ही इस बार हम structural organization of animals करेंगे, right? So tell me, how many of you have got pets? Just raise your hand, please. How many of you have got pets? Yes. Raise your hands. Raise your hands. किसी के पास pet नहीं है? Okay, Vikrant has it. Yes, Vikrant. Okay. So what do you know about your pet? What do you know about an animal which is living with you? उसकी habits बताओ. Unmute करो बेटा. Unmute yourself. Yes. Yes. Tell us. बताओ जो मैंने पूछा है. Ma'am, I have a dog, and when stranger people will come, they bark. They bark at the strangers. Okay. So are they different from human beings?
Yes or no? Yes, Jaldi ma'am. bolo. Okay. Anyone else who has got pets? Can you raise your hands? No one has got pets here. Anyone who's fond of animals? Yes, Araf, are you raising hand or you're doing up your hair? बेटा देखो, आप पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर, ऐसे बैठ जाओगे ना ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह, तो आपके दिमाग में कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है, चाहे मैं कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं आपको. सो प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास. जितना आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है. दीज आर नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस. डू नॉट स्लीप विद योर आईज ओपन. आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. ओके. एंड मान्या, yesterday your question was about the tulsi, no putter? Tulsi is not asexual beta because it has got seeds. Okay. तुलसी की सीड्स होती हैं, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड इट इज नॉट एसेक्सुअल. हाउएवर आपको लगाना है तो उसका स्टेम काट के एसेक्सुअल तरीके से वो लग सकता है, बट इट इज नॉट अ एसेक्सुअल प्लांट. ओके बेटा. ओके. नाउ एनीवन, आर यू डू यू लाइक एनिमल्स? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एनिमल्स? तेजस. यस. चलो बताओ क्यों अच्छे लगते हैं एनिमल्स, क्या खास बात होती है उनमें, और वो एनिमल्स ह्यूमन बीइंग से कैसे फर्क है. पंकज. ओके पंकज, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. जब नोटिफिकेशन आता है ना, अपने आप को अनम्यूट किया करो. यस. बोलो बोलो, जल्दी बोलो. स्पीक. फिर हैंड रेज नहीं करो. अगर आता नहीं है देन डोंट रेज योर हैंड. क्लास का टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे ऊपर नीचे करते करते. तो अश्विक. यस. मैम आई लाइक पेट्स बिकॉज मैम, क्योंकि मैम जो पेट्स होते हैं मैम वो हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं. अगर हमने एग्जांपल ले लिया डॉग, तो मैम वो डॉग जैसे अगर कोई भी स्ट्रेंजर आता है तब वो भौंकते हैं, हमको कहते हैं, सचेत करते हैं, और मैम वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी करते हैं. वेरी नाइस. तो क्या आपको लगता है उनके पास दिमाग होता है? यस मैम. ओके. क्या वो दिमाग हमारे जितना कैपेबल होता है? नो मैम. एंड व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली? मैम ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मतलब क्योंकि ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए ज्यादा, कि जैसे मैम ह्यूमन बींग्स ने अपना घर बना पाया, उनके पास ज्यादा दिमाग था. लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको हम एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो अपनी चीजें खुद से डेवलप कर पाए. Very nice. Very good, Toshvik. You are a young boy. Still, you've answered it almost correctly. Very good. So today we will be studying about animals because animals are also very integral part of our life, right? कुछ हमारे पास पेट्स होते हैं और इंडिया में आप घर के बाहर निकल जाओ तो भी आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं. Whether it is a cow, whether it is your dog, your pet, your cat, anyone. We take ह्यूमन बींग्स हमेशा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हम लेते हैं उनसे, ठीक है. हम प्यार एक्सचेंज करते हैं. ऐसा नहीं होता जैसे प्लांट्स हमें बस दे देते हैं, एनिमल्स हम प्यार थोड़ा सा देते हैं, एनिमल्स हमें खूब सारा प्यार वापस दे देते हैं. सो इंसान एक ऐसा होता है जो सबसे लेने पहले लेता है फिर देता है कुछ. ओके. एनिमल्स हमें बहुत ज्यादा अफेक्शन देते हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा प्यार करें तो. काउ गिव्स अस मिल्क, यू ऑल नो, राइट? हमें some people who are non-vegetarian eat non-vegetarian food also, you know from where it comes. So animals also give us a lot, plus we stay in the same biosphere. So basic structure जब हम बात कर रहे हैं animals की, so it is the basic structure of an animal, as in अगर animal में बहुत variety है बेटा, कोई पानी में रहता है, कोई आसमान में रहता है, कोई लैंड में रहता है. अब अगर मैं बोलूं कि अनिका और पावनी की शक्ल फर्क है ना, दोनों लैंड पे ही रहते हैं, है ना. ऐसे तो नहीं एनिमल्स की तरह पावनी के पास कुछ पंख वंख है और अनिका के पास फ्लिप फ्लॉप फीट है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि सब लैंड पे ही रह रहे हैं. सिर्फ शक्लें फर्क है. क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स डिफरेंट है इसलिए, है ना. सो एनिमल्स में बहुत वाइड स्प्रेड स्पीशीज होती हैं बिकॉज उनको दे लिव इन डिफरेंट कंडीशन. जिस कंडीशन में नेचर ने उनको
दे आर बॉर्न इन दैट, उसी के हिसाब से उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्नेक इट इज अ रेप्टाइल. तो वो किस तरह चलता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह है कि वो उसके लाइफस्टाइल को सूट करे. ओके, सो इसीलिए आज हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बाकी हम वैरायटी डिफरेंट एनिमल्स की बात भी करेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद. अच्छा, अब मुझे बताओ, कल हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, एंड तो प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, आपने सुना है कभी कुछ? व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड? बहुत कॉमन चीज है ये, इसलिए आई एम आस्किंग. स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज, कोई हैंड रेज करेगा? यस, आरुष. यस बेटा. मैम बॉटनी. बॉटनी, शाबाश, वेरी गुड. अनिका, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड? शाबाश. मैम जूलॉजी. वेरी गुड, जूलॉजी. प्लांट्स की स्टडी को, क्योंकि प्लांट्स की स्पीशीज भी बहुत वाइड स्प्रेड होती है, और उसकी बेस मेन स्टडी को, जिसमें सिर्फ आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, उसको बोला जाता है बॉटनी. और एनिमल्स की स्टडी को बोला जाता है जूलॉजी. जू जाते हैं हम सब, जूलॉजी. ओके, नाउ एनिमल्स आर डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड देन ह्यूमन बींग्स. हम भी जानवर से ही बने हैं, मंकी से वी आर इवॉल्व, लेकिन हमारा जो ब्रेन था वो धीरे धीरे ज्यादा डेवलप हुआ, हमारी बैकबोन ऐसे से धीरे धीरे इरेक्ट हुई, एंड दैट इज हाउ वी बिकेम human beings, right? We didn't have a tail, हमारी tail vanish हो गई, that is, but we are also mammals, right? So animals में, now animals don't have a home, right? उनके पास घर नहीं है. Now अगर रोहन को मैं बोलूं कि रोहन एक हिरन है, ठीक है, जो एक जंगल में रहता है, तो जैसे रोहन अभी अपने घर में रहता है, क्या रोहन जंगल में एक ही जगह पर पूरा टाइम रह सकता है? यस रोहन, यस और नो? अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा, अनम्यूट करो. शाबाश. मैम नो. वाई? मैम बिकॉज वी कांट लिव इन जंगल. यू कांट लिव इन जंगल? नहीं, सोच लो, एक सेकंड के लिए सोचो कि आप हिरन हो और आप जंगल में ही रह रहे हो, तो क्या आप एक जगह पर रह सकते हो? मैम नो. क्यों? वाई? रीजन पता है आपको? फटाफट बोलो, कौन बताएगा? कॉमन सेंस, इट इज अ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन. तोश्विक नोज इट. वैदेही, यस. एवरीवन शुड स्पीक. देखो तोश्विक हर बात में ही इज रेजिंग हैंड एंड ही इज आंसरिंग. ही विल एब्सॉर्ब इट सो मच. यस वैदेही. Ma'am, because it's not a nature. It's not the nature, but what if it stays? If you are an animal and you're staying at one particular place, will you just stay there only, or you'll move around? And why so? Ma'am, if we are animals, we can stay. Stay at the same place? Are you sure? Yes, Are you ma'am. sure? Okay. Now Raghav, ये बताओ जो वैदेही ने बोला है वो ठीक है या गलत है? No, ma'am. Like अच्छा, क्यों? if a lion comes and if we can't move, then he will definitely eat us. Yes, absolutely right. वैदेही, शेर And खा जाएगा. हाँ. and when we have to eat food, we must find it. Yes, absolutely right. So that is why locomotion is a very important thing in animals. Animals को एक जगह से दूसरी जगह चलना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ खाना ढूंढने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भी. क्योंकि एक जगह पर अगर हम बैठे रहेंगे तो शेर को पता चल ही जाएगा कि ये यहीं मिलेगा, इसको यहीं आके खाना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है. ओके, यहाँ पर घर में तो आप लॉक लगा के रखते हो, कोई नहीं आता, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, बट ऐसा हम जानवर नहीं कर सकते ऐसे. सो दे नीड टू मूव अराउंड बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव. उन्हें जिंदा रहना होता है जंगल में, उन्हें वॉक करना होता है, उन्हें रनिंग, क्लाइंबिंग, हंटिंग सब कुछ करना है, स्विमिंग, जिसके लिए उन्हें नेचर ने बनाया है. इंसान को भी अभी इतना आराम हो गया है, इतना आराम करने के लिए इंसान को बनाया नहीं भगवान ने वैसे, है ना. ओके, अब मुझे बताओ, 1+1+, आपका नाम मैं ही लिखूंगी बेटा, मुझे अपना नाम बताओ फटाफट. अनम्यूट करो. यस, नाउ अनम्यूट, यस.
Yes. What is your good name? Avyan Patwari. Agyan? Avyan, Avyan. Okay, Afghan. Okay, beta, now tell me, have you ever stayed outside the house? No. ओके, एक मिनट। मुझे ये बताओ बेटा कि कभी जैसे मम्मा बोलती है कि अगर ये नहीं हुआ तो घर से बाहर निकाल दूंगी, कभी हुआ है किसी के साथ? या कोई टेंट में रहा है, किसी ट्रैकिंग में? एनीवन हु स्टेड गॉन ऑन ट्रैक? ट्रैक पर गया है कोई? माउंटेन क्लाइंबिंग करी है किसी ने? कोई टेंट में रहा है कभी? यस, राघव हैज स्टेड। कोई और नहीं रहा? मान्या हैज स्टेड और नॉट? Raghav, wait, you've answered one question. Agar if no one is answering, then I'll ask you. Yes, Devansh Verma, switch on your camera now. Yes, where are you? Where have you gone? Raghav, yes, बताओ बेटा. No one is raising hand. अब जो hand raise करेगा उससे पूछूंगी मैं, क्योंकि बाकी बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास का. I went in Andaman, so there is a mountain. So I went for trekking and I stayed there. Okay, you went. So, did you have the fear when you were staying in a jungle? Did you have the fear? Why? Why so? Any animal would come and eat me. Okay, yes, of course. So staying in jungle is not easy. Yes or no? Staying in house is easy. आराम से लॉक करो, मम्मा ध्यान रखेगी, खाना भी मिल जाएगा. Is staying in jungle easy? Yes or no? Staying in jungle is not easy. Why? Because you fear as a human being also. जब आपके पास गन भी होगी, सब कुछ होगा, फिर भी आपको डर लगेगा कि कोई एनिमल आके मुझे खा जाएगा. तो ये सोचो, एनिमल टू एनिमल, सब everyone would be so cautious. And this is one reason why animals के sense organs बहुत शार्प होते हैं. अब मुझे ये बताओ, एनिमल्स हम सेंस ऑर्गन्स तो हमारे भी हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन ज्यादा शार्प होते हैं या एनिमल्स के ज्यादा शार्प होते हैं? Gideon, yes. Do we have sharper sense organs or animals? Ma'am, ours. हाँ, Ma'am, ours. हमारे ज्यादा शार्प होते हैं सेंस ऑर्गन्स. प्लीज गिव एन एग्जाम्पल. गिव एन एग्जाम्पल. We remember. That is nothing to do with your sense organs. I'm talking about your sense organ, not your brain. Brain तो हमारा ज्यादा डेवलप है ही. Sanvi, can you explain this? Unmute yourself, beta. Yes. बोलो. Our brain is sharper than animals, but animals, their sense organs like ears or nose are more sharper than us. Very good, very good. So, Gideon, our sense organs are not so sharp. Dogs को देखा है, sniff करके dog ढूंढ लेता है thief को. क्या Gideon कर सकता है ये काम? सूंघ कर पता लगा सकता है किसने चोरी करी थी? नहीं, है ना? हवा का वो देखकर बता सकते हैं कि अभी आंधी तूफान किधर से आ रहा है? नहीं. तो सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स के इसीलिए ज्यादा शार्प होते हैं, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन अ जंगल. दे आर वेरी अलर्ट. अगर आप एक दिन घर के बाहर रुकोगे, आपको सारी दुनिया की आवाजें सुनाई देंगी. उस दिन आपके कान बहुत तेज हो जाएंगे, है ना? सो दिस इज द रीजन. ओके, नाउ जिसको हम नेचर बोलते हैं बेटा, भगवान बोलते हैं, जो भी आप बोलो, नेचर ने इतनी ब्यूटिफुली सब चीजों को ध्यान रखकर बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ डक हैज टू फ्लोट, सो इट हैज गॉट द वेब फीट, जिससे वो फ्लिप फ्लॉप करके आराम से पानी में मूव कर सकती है. इट हैज गॉट अ लाइट बॉडी. ओके, अकॉर्डिंगली इफ यू सी द पोलर बेयर के, अब जैसे मान्या की दादी माँ है, वैसे पोलर बेयर के पास दादी माँ तो होगी नहीं, है ना? तो स्वेटर कौन बनाएगा? तो नेचर ने उसको इतना सारा फर दे के भेजा है, आराम से 6 months इट कैन हाइबरनेट इन एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स. ओके, क्रोकोडाइल का देखो, इफ यू सी, नीचे से उसको ऐसे बनाया है क्योंकि उसको पानी में रहना होता है, कि आपको लगेगा कि पानी के नीचे पत्थर है, इसीलिए क्रोकोडाइल दिखता नहीं है. बिकॉज इट हैज टू कैच इट्स प्रे. अगर सबको क्रोकोडाइल दिख जाएगा तो वो खुद क्या खाएगा बेचारा, किसको पकड़ के खाएगा,
है ना, और उसको ऐसी टेल दी है कि वो टेल से एक बार अपने प्रे को पकड़ के गला दबा देता है और खा जाता है ना। हमको ऊपर से देखने में लगेगा अरे यहाँ तो पत्थर पड़े हुए हैं, क्रोकोडाइल तो है ही नहीं. So nature has made it in such a way so that the balance goes on and the cycle food chain also carries on. Animals' bodies are also designed to interact with their environment. जैसा उनका environment होता है उसी के according उनको body दी है nature ने. Okay, whether in the deep sea, rainforest canopy or the desert. Body covering including fur, scales, skin, feathers and shells depend on their needs and climatic conditions. Okay. जो अभी आपको बताया बेटा, पोलर बियर हैविंग सच अ हेवी फर, अगर आप उस पोलर बियर को आप इंडिया की जगह में ले आओ तो वो उसका वैसे ही दम घुट जाएगा गर्मी में, पता है इतनी गर्मी लगेगी उसको, बिकॉज इट इज मेंट फॉर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, वो वहीं मिलता है. पिकॉक, we see the peacock roaming around freely. It has got very heavy feathers, so that is the reason ये इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता है, but it has got very attractive feathers to attract the peahens for reproduction. Head. Now we all have got head. Can you touch your head and show me where's your head? Head touch करके दिखाओ मुझे. अच्छा है, क्या है इसके अंदर? घास फूस तो नहीं है? क्या है इसके अंदर बताओ, कौन बताएगा मुझे? जिसके ब्रेन के अंदर जो भी है वो बताओ, है ना. अगर घास फूस भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं. अगर ब्रेन है तो भी चलेगा. राघव को पता है? वेरी गुड राघव, आई एम वेरी हैप्पी यू पार्टिसिपेटिंग. रियांश, वेट बेटा, आप एक बार जवाब दे चुके हो. वेट रियांश, यस टेल मी व्हाट इज देयर इनसाइड योर हेड? आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, इनर कवरिंग को क्या बोलते हैं? नहीं मालूम है, इसीलिए आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो. एनीवन इंटरेस्टेड? क्योंकि जिससे मैं, यस आई सॉ समवन रेजिंग हैंड. पृथ्वी, yes Prithvi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. What is there inside your head? Yes, yes तो 2 बार बोला था. आंसर दो जल्दी. Ma'am, muscles. Quick. Muscles? दिमाग के अंदर muscles? बाप रे. Are you sure? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आंसर किया. आई एम वेरी हैप्पी, शाबाश. किसी अभी देखो, yes. Anyone else? Anyone else? Raise your hand, please. Anika, yes, beta. What is there inside your brain? Ma'am, there's scalp and then brain. Very good. So brain is inside the skull which we have. ये जो हमारा खोपड़ी है इसके अंदर, है ना, प्रोटेक्ट करके नेचर ने रखा हुआ है हमारे ब्रेन को. क्यों रखा है? क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है ना, सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है यहाँ पे. ओके, सो लाइकवाइज एनिमल्स आल्सो हैव अ हेड. ये बात अलग है कि उनका हेड उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है जो उनकी जरूरत है. Animals have brains and the head structure protects it. Brain covers thinking, behavioral pattern like how to eat, how to look for food and hide from predators. Brain हमारे पास भी है, ब्रेन एनिमल्स के पास भी है, लेकिन दे यूज द ब्रेन, उनका emotion, they are emotional, that is why they exchange love. They use the brain for their food, for rest of their survival. But हमारा, we are slightly more evolved, हम अपने आप को grow करने के लिए भी अपना brain use करते हैं. ठीक है, this is the difference between our brain and animals brain. ठीक है, you will see them exchanging love, you will see them, they are very sharp. Okay, when it comes to their survival, वो जिंदा रहने के लिए they are very smart, हमसे ज्यादा smart. Okay, अगर आप एक छोटी सी चींटी को भी ऑब्जर्व करोगे तो वो भी, अगर आपने एक जगह चींटी को मार दिया तो चींटियां वहां से फटाफट घूम के गायब हो जाती हैं, उनमें इतना सेंस होता है ना. सो एवरी एनिमल हैज दैट सर्वाइवल, वो अपना ब्रेन उसके लिए यूज करते हैं. चलो, हेड, इवन द ईगल हैज इट, द वल्चर हैज इट. नाउ ईगल को देखा है सबने? निकुंब एंड अक्षत, हैव यू सीन एन ईगल बेटा? यस और नो? आप लोग ट्विन ब्रदर्स हो क्या? Yes, ma'am. सो स्वीट, सब कुछ इकट्ठे करते हो? Yes, ma'am. वेरी स्वीट. अच्छा बताओ मुझे, सो हैव यू सीन एन ईगल? Yes, ma'am. Okay, have you had an experience? What, tell us about it. If you have seen the eagle, tell me about the bird. What kind of a bird is it? Is it a normal bird? What is it? Beautiful bird. Okay, and how
How is it different from the rest of the birds? Yes, Akshat, quickly. Anyways. Dead animal. Eat dead animals. अक्षत, क्लास में अपनी खुद की ब्रेन लगानी पड़ेगी, है ना? खुद की ब्रेन लगा के जवाब दो बेटा। आपको भी आता है ये आंसर, ठीक है? मम्मा से बिना पूछे आपको भी आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अकल लगाओ अपनी, सब आता है आप लोग को, है ना? यू आर ऑल वेरी स्मार्ट जनरेशन। यस, Anika will tell. Any other? Wait, Anika, you'd answered. Anyone else? Anyone else? Yeah, Avagyan. Yes. Unmute yourself, please. Ma'am, eagle, it is big Yes, it is huge. and it catch the small animals. Yes, absolutely right. It catches the small animals and it eats the dead animals also. Plus, it is very sharp. It has got very sharp vision. Now, when it is catching a small animal and it is huge, if you see, so अगर eagle को देखकर छोटे animals डर जाएंगे ना, so eagle it has a very sharp vision. वो इतनी ऊंचाई से नीचे prey को देख लेती है and it can glide and just catch hold of the prey. अगर कोई चूहा है नीचे, जितने इससे पहले कि चूहे को पता चले, वो नीचे आके चूहे को पकड़ के ले जाएगी. It is so fast, so sharp. Okay, and why is it so? Because again the survival is active. अगर ईगल को टाइम लगेगा तो चूहा उतनी देर में गायब हो जाएगा और ईगल भूखी रहेगी, है ना? So the head is such that the eyes are placed on both the sides and that makes the vision very sharp. Okay. Then comes the dog. Dog it is famous for sniffing, of course. Smell बहुत strong होती है. Eye, ears, nose बहुत strong होते हैं. When we have a pet, you will see someone coming on the gate. आपको पता भी नहीं चलेगा और dog भौं करके उसको डरा देगा, है ना? So that is because of the survival again. Functions of eye. Sharp vision होता है. Eagles, vultures का, इन सारी बड़ी birds का. Okay. Owls का eyes are in front. If you see, it is also a bird. Normal bird की तरह उसका eyes sideways नहीं होता, उसका eyes front में होता है. It is a night animal. उसको रात में दिखाई देता है. And the thing is that उसका neck ऐसे पूरा घूम जाता है, भूत के जैसे 360 degrees ऐसे पूरा घूम जाता है. तो it doesn't need the eyes sideways. वो सामने से ही देख लेता है. Okay. So eyes in front of the head. Pigeons, crows, sparrows, eagles, they all have eyes on the either side of the head like eagles hold. Okay. Now tiger. Tiger is, everyone is scared of tiger, है ना? अभी अगर कोई animal है, if you go to a कोई national park गया है कभी कोई बच्चा? Anyone has been to a national park? Anyone? Quick. Raise your hand. National park नहीं गया कोई बच्चा? Okay, Raval, yes. Raval, tell us your experience. Did you see a tiger or anything? Yes, ma'am. Okay, you saw a tiger. Wow. How was the tiger? Ma'am, it was very big and huge. Okay. So you didn't get scared? Ma'am, no, ma'am, it was in the cage. Cage, but national. तो आप zoo गए होंगे बेटा फिर, है ना? मैम मैं भी गया था मैम, बट वो तेलंगाना में था मैम, उधर केज लगे हुए थे. अच्छा, केज में अगर होगा तो वो जू ही होगा, या फिर क्योंकि नेशनल पार्क में तो खुले होते हैं, एनिमल्स आर ओपन, इट इज देयर टेरिटरी. नेशनल पार्क खुले थे ना मैम, उधर बीएस भी थे खुले. यस, सब खुले होते हैं वहां पर, बिकॉज इट इज देयर टेरिटरी. हमको बहुत साइलेंटली जाना होता है. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड रावल, वेरी गुड बेटा. ओके मान्या, नाउ टेल मी, have you seen, you've also seen a tiger, I'm sure. Yeah, unmute yourself. Unmute karo beta. Yes, ma'am. I saw a tiger in Ranthambore National Park. Which park? Ranthambore National Park. Ranthambore, very nice. So मुझे बताओ, जब टाइगर आ रहा था तो एनिमल्स अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे? Yes, ma'am. जो सांबर डियर था ना, वो पता नहीं एक बहुत ही
लाउड साउंड निकाल रहा था। यस, व्हाट वाज दैट? आपको क्या लगता है, क्या क्या बोल रहा था वो, मतलब क्या स्क्रीम क्यों कर रहा था? व्हाई वाज ही स्क्रीम? मैम वो अलर्ट कर रहा था सबको कि टाइगर यस, यस, अब एब्सोल्युटली राइट। अपनी स्पेसेस पे चले जाओ। Yes, very good, beta. Sare animals, all the animals that ways, if you see the monkey will screech. अगर कोई एनिमल है और कोई खतरा दिख रहा है कि टाइगर सांबर को खा जाएगा या किसी और एनिमल को, वाइल्ड बोर है उसको खा जाएगा, so they will create a certain sound to tell them that here the problem is here, so run away from here. Okay, now in that case टाइगर के तो सारे मतलब बैंड बज गया उसका, तो वो कहीं से खा ही नहीं सकता, जिधर भी जाता है सारे भाग जाते हैं, है ना? तो नेचर ने कैसे बनाया टाइगर को, पता है कितना स्मार्ट बनाया टाइगर को? उसको रात में 6 टाइम्स, जितना हमको रात में दिखता है ना, उससे 6 टाइम्स ज्यादा दिखता है। तो अगर कोई एनिमल सो भी रहे ना, वो दबे पांव जाएगा और उसको खा जाएगा। ठीक है, देन इसके जो ईयर्स होते हैं वो ऐसे रडार मशीन की तरह टक 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 पूरा घूम जाते हैं, एंड इट कैन सेंस, कोई भी दूर दूर तक कोई होगा तो इट कैन मेक आउट कि वहां पर कुछ है। यू विल सी द टाइगर, अगर छोटा सा कोई नॉइज है, उसको लग रहा है कोई खतरा नहीं है, तो यू जस्ट सी एंड सिट क्वाइटली, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता ज्यादा, है ना? देन दीज विस्कर्स, ये जो विस्कर्स होते हैं, इनसे ये वाइब्रेशन पकड़ लेता है, the vibration of the things which are happening around. Okay, so that is what makes the tiger very smart, and that is why everyone is scared. So देखो फूड चेन को कैसे बैलेंस किया हुआ है नेचर ने पूरा, है ना? इट कैन सी 6 टाइम्स, दीज आर देखो अमेजिंग सेंस ऑर्गन्स विच दे हैव, हमारे पास भी है लेकिन हम इतना यूज नहीं करते, है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है आधे तो सेंस ऑर्गन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, मम्मा अपने आप चिल्ला चिल्ला के बता देगी हमें, है ना? ये करना है वो नहीं करना, तो क्या जरूरत है सेंस ऑर्गन यूज करने की, है ना? चलो, नाउ लेट अस सी, स्नेक देखा है किसी ने? स्नेक देखा है? ओके, स्नेक के बाहर ईयर्स देखे हैं क्या? होते हैं क्या रैबिट ईयर्स स्नेक के? नहीं होते ना? ओके, तो आपको क्या लगता है स्नेक बहरे बहरे होते हैं क्या? आर दे डेफ? आर दे डेफ? आर दे डेफ? यस? नो? व्हाट? रॉवल, यस? Ma'am, they have internal ears. Shabash, very good. So that means they are not deaf, right? Yes, ma'am. Very good, Ravel. Yes, they have got internal ears, and that is why they catch the vibration of the ground. अगर कोई earthquake आ रहा है तो उनको पहले पता चल जाएगा। आपको पता है जो पुराने जमाने के लोग थे ना, अगर आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स किसी के हैं उनसे बात करोगे ना, तो वो आपको बता देंगे कि ऐसे कोई एनिमल इस पर्टिकुलर तरीके से चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये होने वाला है। बर्ड्स उस डायरेक्शन में चूचू करके भाग रही है, तो ये होने वाला है। ठीक है, सो स्नेक्स ऑल्सो दे कैन प्रिडिक्ट कि अर्थक्वेक अगर आ रहा है, दे विल सी द स्नेक मूविंग लाइक दैट, दे विल फिगर आउट कि स्नेक ने कुछ तो सेंस किया है। ठीक है, सो दे हैव इंटरनल ईयर्स जिसमें वो ग्राउंड के वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं। बर्ड्स, दे मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव अलार्म, वो एक दूसरे को अलार्म देती हैं। आप हमेशा देखोगे बेटा कोई सुनामी या कुछ आता है या फिर कोई बहुत तूफान आने वाला है, तो यू विल सी सडनली बर्ड्स वेरी डिस्टर्ब, चॉप करेंगी और वहां से भागने की कोशिश करेंगी। ओके, fishes, they can sense tsunami waves because fishes are living in water, they are breathing in water. So वहां पर अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हैं ओशंस में और सीज में आने वाले हैं, तो वो उसको फटाफट प्रिडिक्ट कर लेती है। ओके, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स कितने क्यूट होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो अपनी बॉडी को पंखा करते हैं, उनको बहुत गर्मी लगती है। ओके, डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स आर अगेन वेरी फ्रेंडली एंड दे मेक साउंड्स, वो आवाजें निकालते हैं खाने के लिए और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। दे आर वेरी फ्रेंडली एनिमल्स। ओके, tigers, whispers can sense the vibrations in the air and their ears are very sensitive and they can move them like a radar dish. Okay, अब मुझे बताओ फ्रॉग देखा है ना सबने? देखा है फ्रॉग? ऐसे खाया है किसी ने खाना? अपना फेवरेट फूड खाया है ऐसे जंप मार के? नहीं खाया ना? चलो, इसका मतलब पक्का है यहाँ पे इस क्लास में सारे ह्यूमन बींग्स ही है, कोई मंकी जानवर वानवर नहीं है ना? ओके, देखो अभी नेचर ने फ्रॉग को इतनी लंबी टंग दी है क्योंकि उसको कीड़े ही खाने हैं, है ना? और जितनी देर में वो जंप मारेगा कीड़ा उड़ भी सकता है। the insect also has got feathers, है ना? So what does the frog do with the tongue? It catches the insects and eats them. Okay, स्नेक्स क्या करते हैं? स्नेक्स को आप अगर कोई स्नेक्स को भगाना होता है बेटा, आप स्कूल में देखोगे हम क्या करते हैं स्कूल्स में,
स्प्रे करते हैं, स्नेक स्प्रे होता है, उसमें केमिकल का स्मेल आता है। केमिकल का स्मेल जैसे ही आता है ना, स्नेक भाग जाता है वहां से, आता ही नहीं है, इट डजंट लाइक, केमिकल्स नहीं अच्छे लगते उसको, ठीक है। सो स्नेक अपनी नोज से केमिकल स्मेल कर लेता है सराउंडिंग्स में। डॉग्स एंड कैट्स क्या करते हैं, दे क्लीन देयर फेदर विद द टंग, ओके। एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, क्या वो कद्दू है, मुझे नहीं खाना, दे स्मेल, है ना। सो वी स्मेल आवर फूड एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर बॉयज ने स्टिंकी सॉक्स पहने तो वो उसकी भी स्मेल आ जाती है ना क्लास में, है ना मान्या, स्टिंकी सॉक्स की भी स्मेल आ जाती है ना, गंदे सॉक्स की, बैड ओडर, ओके। फंक्शंस ऑफ नोज, चलो, ants now, ants are moving, always moving in a straight line, okay, they are always moving in a straight line, we all have seen it, yes। Prithvi and Prithvi Jangra, are you also twins? आप brothers हो, brothers तो हो, आप twins हो क्या? Yes, Are yes, you- ma'am. both of you are twins, Yes, ma'am. okay, what is your name, who's Prithvi? Okay, and what is your name? Ma'am, Pratham. प्रथम, ओके। प्रथम एंड पृथ्वी, टेल मी, आपने एंड्स को सीधा चलते हुए देखा है? Yes, Ants ma'am. को, हाँ। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि आप सीधे चलते हो लाइन में, स्ट्रेट? Yes, ma'am. ओके, कब चलते हो, जब पीटी सर सीटियां मारते हैं तब चलते हो स्ट्रेट, है ना? Yes, ma'am. और जब गेम्स के टाइम पे लाइन बना के जानी होती है। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ, ये एंड्स की पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे ना, ये इतना स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं क्या? हाँ, इतना Yes, स्ट्रेट ma'am. लाइन, अच्छा, तो इनके पीटी टीचर होते हैं, शाबाश। कैसे चलते हैं स्ट्रेट, क्या लगता है आपको, हाउ डू दे वॉक सो स्ट्रेट, व्हाट डू यू थिंक, एनी आइडिया? Ma'am, it follow each other. They follow each other, very nice, but how do they follow, that is the question, है ना। इनके पास तो पीटी टीचर सीटियां मारने के लिए भी नहीं है, so how do they follow? तोश्विक, yes बेटा। मैम व्हेन वन एंट गोज एनीवेयर, मैम एक स्मेल छूटती है उस रास्ते पे, और मैम उसी को फॉलो करते दूसरी आती है मैम, फिर मैम वो उसकी स्मेल मैम उसी रास्ते पे छूटती है, तो मैम उसको फॉलो करते आगे, मतलब और चींटियां जाती जाती है, मतलब वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सो हमेशा एंड्स के पास क्योंकि पीटी टीचर नहीं होते, तो इनके पास एक स्पेशल ट्रिक होती है, ये एक दूसरे को, दे लीव अ पर्टिकुलर स्मेल जिसको दूसरा एंड फॉलो करता है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप बीच में कुछ रख दो ना, तो सारे एंड्स ऐसे जाने शुरू हो जाएंगे, सारे, बिकॉज दे वन, जो एक करेगा वो सारे पीछे पीछे करना शुरू हो जाते हैं, है ना। सो एंड्स मूव एंड लीव अ स्मेल बिहाइंड विच अदर एंड्स फॉलो टू फाइंड देयर वे। मॉस्किटोज, आपने देखा है कुछ लोगों को मॉस्किटोज बहुत ज्यादा काटते हैं और कुछ को बहुत कम काटते हैं, ऐसे होता है क्या प्रियांशु? यस, Yes, ma'am. okay, so why would you think that like this thing happens? क्यों होता है एंड्स को कुछ, कोई 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 इंसान बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, ऐसा है क्या कुछ? No, ma'am. फिर प्रियांशु को काटते हैं बहुत सारे मच्छर? मैम काटते तो हैं बहुत बहुत। ओके, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि प्रियांशु का जो बॉडी ओडर है और प्रियांशु की जो बॉडी हीट है वो अट्रैक्ट करती है मॉस्किटोज को, है ना। सो मॉस्किटोज जनरली दे टारगेट, कुछ लोगों को बहुत कम काटेंगे मच्छर, जब बहुत ज्यादा है तब तो सबको ही काटेंगे, बट इट इज अबाउट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा काटते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बॉडी ओडर पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉडी हीट पर, ओके, दैट इज व्हाई दे बाइट। सिल्कवर्म, सिल्कवर्म इज इट फाइंड फीमेल वर्म्स बाय द स्मेल, स्मेल से फीमेल वर्म को ढूंढता है एंड दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन। डॉग्स एंड टाइगर्स क्या करते हैं, वो टेरिटरी मेंटेन करते हैं अपनी यूरिन की स्मेल से। ह्यूमंस क्या करते हैं, दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल, ओके। नाउ जैसे हमारे सिस्टम्स हैं वैसे एनिमल्स के भी है, यहाँ हम बेसिक सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एनिमल्स में स्पीशीज बहुत वाइड स्प्रेड हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ पानी में तैर रहे हैं, इसलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर अभी, ओके। ये जो मैंने डायग्राम्स डाले हैं ये एग्जाम में नहीं आएंगे, और जितनी डिटेल में लिखा हुआ है वो भी नहीं आएगा, ये गूगल से इसलिए डाला गया है जिससे आपको समझ आए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा चैप्टर है हमारा,
सो लेटर ऑन वील बी डूइंग एंटायर चैप्टर। यहाँ पे आप सिर्फ ये समझो कि कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। जितनी डिटेल में आपको डायग्राम में दिख रहा है उतना डिटेल में नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम, भूख लगती है तो कहाँ से भूख लगती है? हाथ रखो वहां पर जहां भूख लगती है। यस, किधर लगता है भूख? टमी में, है ना। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वही है, इट इज देयर ओनली। ओके, कहाँ से स्टार्ट किया हमने खाना? फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट ईटिंग? ओके, बकल कैविटी, यहाँ पर खाना गया स्लोली, हमारे टीथ ने चबाया, हमारी टंग ने उसको मिक्स किया, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स ने वाटर डाल के उसको सॉफ्ट किया, और धीरे धीरे फिर वो गया हमारे फूड पाइप। ये आपके बारे में इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है हर लिविंग बीइंग का। सो एनिमल्स का भी यही है। ओके, बेसिक बेसिक की बात हो रही है यहाँ पर। और ईसोफेगस है यहाँ पर, ये फूड पाइप है, हमारे माउथ से फूड पाइप कनेक्टेड है इन द स्टमक। अब स्टमक को पहले इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। अगर सिद्धार्थ ने मुंह में चॉकलेट डाली है तो स्टमक को पता चल गया है, ब्रेन ने स्टमक को बता दिया कि भाई 2 मिनट में अभी तेरा काम शुरू होने वाला है, जल्दी से रिलीज एंजाइम्स, केमिकल्स रिलीज करो। सो स्टमक इज रेडी। एज फूड पाइप से खाना सिंप्लीफाई होके आता है, स्टमक उसको ग्राइंडिंग स्क्वीजिंग स्टार्ट कर देता है, लिवर उसको बाइल बना के देता है कि और अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, पैनक्रियाज उसको एंजाइम्स देते हैं कि और अच्छे से डाइजेस्ट करो, फिर स्टमक उसको खूब देर मिक्सिंग 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 करता है। आपने देखा है जब आप इंटरवल के बाद खाना खाते हो, उसके बाद आपको नींद आती है, खाना खाने के बाद भागने का मन नहीं करता है ना? करता है भागने का मन खाना खाने के बाद? नहीं करता ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, हमारी अंदर की मशीन चल रही है। हम बाहर भी भागने लगेंगे तो क्या होगा? खाने के बाद वॉमिटिंग आ जाएगा, है ना। सो स्टमक इज ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग एंड देन व्हाट हैपेंस? जो भी आपने खाना खाया है वो सारा ग्राइंड करके स्टमक किसको देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये जो कॉइल्ड है ना पूरा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। इट इज वेरी लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन मोटू होता है लेकिन इतना लॉन्ग नहीं होता जितना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या करता है? ये आपके सारा जो भी आपने हेल्दी फूड खाया है वो सारा ब्लड में डाल देता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन को देता है कि लार्ज इंटेस्टाइन प्लीज इसको बाहर फेंको, मुझे नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं है। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करता है, एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर और जो भी चीज होता है उसको यहाँ पे आउट स्टोर करता है, और एनएस से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम घर में करते हैं ना बेटा। कूड़ा कचरा घर से बाहर हो जाता है सुबह सुबह, वैसे ही हमारी बॉडी भी जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट होता है वो सुबह सुबह बाहर आउट कर देती है, राइट। सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके ये सारे ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट कम्स टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी, कैन यू टच फ्रॉम वेयर डू यू ब्रीथ? टच योर दैट पार्ट। कहां से सांस लेते हैं हम सारे? टच करो जल्दी से। सांस किधर से लेते हैं? शाबाश, नोज से, माउथ से। सो ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो यहां से ये पूरा नीचे इधर अंदर जाता है, और ये जो फेरिंग्स है ना, ये छोटा सा एक कार्टिलेज होता है, क्योंकि हमारी फूड पाइप और हमारी विंड पाइप दोनों आसपास लगी हुई है। आपने देखा है कोई बच्चा खाना खाते खाते अगर खेलने लग जाता है तो क्या होता है? एकदम से खांसी आती है और सारा खाना ऐसे नोज में आ जाता है, होता है ना ऐसे? क्यों होता है? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइक दिस। नाउ फेरिंग्स क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी का ही है, लेकिन ये जैसे खाना जा रहा होता है ना, जब फूड पाइप में खाना जाता है तो विंड पाइप को कवर कर लेता है कि भाई इसमें ना चला जाए कहीं, है ना। सो ये यहां से खाना हमारा नीचे जाता है। ये है लैरिंग्स। अभी यहाँ हाथ रखो जरा, कीप योर हैंड हियर, और जोर से शोर मचाओ यहाँ पर, कीप योर हैंड हियर, शोर मचाओ, बोलो कुछ, बोलो अपना नाम बोलो। अब ये व्हाट इज दिस? यहाँ आवाज साउंड फील हो रहा है? दिस इज योर साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स है, यहां से निकलती है आपकी आवाज, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं बेटा। उसके बाद ये पूरा सांस आपका नीचे जाता है ट्रैकिया में, ये सांस की नली जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया से हम आपका सांस नीचे गया, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सारा हमारे लंग्स में सब ऑक्सीजन जो हमने लिया है उसको फैला देते हैं, ठीक है। अब मैम दिल्ली की है, हाँ, तो मैम की ऑक्सीजन में तो बहुत सारा पॉल्यूशन है, तो क्या ये पॉल्यूशन मेरे ब्लड में चला जाएगा?
चला जाएगा ऐसे ही? नहीं जाएगा ना। अगर गया तो मेरा तो ब्लड ही खराब हो जाएगा पूरा, है ना। तो हमारे लंग्स देखो कितने स्मार्ट होते हैं, जैसे मम्मा की छन्नी होती है ना, ऐसे लंग्स पे पूरे ऑक्सीजन को साफ किया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और अच्छी ऑक्सीजन को ब्लड में डाल दिया जाता है। देखो हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है, नेचर ने कितना स्मार्ट बनाया हमारी बॉडी को। ओके, सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, उन सबके पास यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फ्रॉग, लेजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स। हाउएवर, क्या फिशेस के पास ये सेम चीज हो सकती है? नहीं। व्हाई? बिकॉज दे आर ब्रीदिंग इन वाटर। वो क्या करती है? गिल्स के थ्रू वाटर पास करती है और उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है। ठीक है, इसीलिए बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे जानवर का स्पीशी बिल्कुल फर्क होता है, उसमें फर्क हो जाता है। अब जैसे ये देखो, अर्थवर्म है, सबने देखा है अर्थवर्म बारिशों में निकलते हैं ना। डू यू थिंक दे वुड हैव लंग्स? आपको लगता है इनके पास लंग्स होंगी? नहीं हो सकती ना, इतना पतलू बॉडी में। ओके, और आपने देखा है ये कितने चमकदार होते हैं। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं बेटा। ये सांस लेते हैं स्किन से, ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और ये इतने चमकदार इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप मुंह खोल के सांस लेते हो, आपने देखा है मुंह ड्राई हो जाता है पूरा। तो सोचो कि अगर ये स्किन से सांस ले रहे हैं, इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी ना, तो क्या होता है, ये पूरा इससे म्यूकस से कवर होता है जिससे ये ड्राई ना हो। दैट इज वाई दे आर सो शाइनी। ओके, कॉकरोच कितने बच्चों के फेवरेट है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कॉकरोचेस? जल्दी हैंड रेज करो। सबको अच्छे लगते हैं? अगर हैंड रेज नहीं किया इसका मतलब सबको अच्छे लगते हैं। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कॉकरोचेस? ओके, लाइक, डिसलाइक। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक? तेजस, यू लाइक कॉकरोच? अच्छा, बॉयज को कॉकरोच बड़े अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। तेजस, क्यों अच्छा लगता है कॉकरोच, बताओ जल्दी से। Yes, it has different functions. Very nice. That is why you like it. Yeah. So have you collection of these cockroaches? Do you collect them? It's all here. Okay, nice. Anyone else? Anyone else? Priyanshu, why don't you like them? क्यों नहीं अच्छे लगते cockroaches? मैम वो जब हमारे बॉडी में बैठते हैं तब मैम मेरे को मतलब कैसे अलग सी फील आती है, इसलिए मैम मेरे को वो अच्छे नहीं लगते। बॉडी में बैठते हैं? माय गॉड, मैं जंप मार के स्काई पे पहुंच जाऊं। ओके 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 ओके, देवांश, देवांश ऑल्सो लाइक्स कॉकरोचेस। हाँ, यस देवांश। देवांश का कैमरा ऑफ ही है, क्या प्रॉब्लम है देवांश, जरा बताएंगे आप? अनम्यूट करो। यस देवांश, हु इज देयर? Ma'am, my camera is not opening. I have written message in group also for you. बेटा अपना दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करना, अदरवाइज मुझे आपकी शक्ल ही नहीं पहचान आएगी। ठीक है? Okay, ma'am. Next time I will choose another device. Yes, please do it. Okay, very nice. Now cockroaches also. आपने देखा है कॉकरोच के ऊपर स्प्रे मारा है सबने? अनिका, स्प्रे मारा है कॉकरोच पे, तो क्या होता है, कॉकरोच उल्टा हो जाता है। मालूम है क्यों होता है? देखो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। जैसे हमारा ट्रैकिया था ना, ये देखो इसकी ट्रैकियल ट्रंक है। जैसे ही हम इसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करते हैं तो ये उल्टा होकर सांस लेने की कोशिश करता है। व्हाई? बिकॉज ये स्पिरैकल्स यहाँ से सांस लेता है वो, और उल्टा होके और जोर से ब्रीथ करने की कोशिश करता है ये, कि शायद इसकी जान बच जाए, है ना। उसको पता नहीं है कितने लोग उसको पसंद नहीं करते। शुक्र है कॉकरोच नहीं है क्लास में, बेचारा डिसहार्टन नहीं हो जाता है ना, कोई पसंद नहीं करता उसको। ओके, चलो अभी हमने ये सारे सिस्टम्स देखे हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स एक नॉर्मल लिविंग बीइंग में होते हैं। मसल सिखाओ मुझे अपनी सारे मसल्स दिखाओ, कहाँ है मसल्स? शो मी। You have muscles? Very good, very good. So everyone has muscles. Now what are muscles doing? Yes, skeleton जो हमारा है, and the muscles are giving, skeleton is giving us a shape, muscles are making us do things, work, move, right? So और ये cartilages हैं जो हमारे joints को move कर रहे हैं. Okay, so musculoskeletal system has muscles and bones and it supports and moves the body. Digestive system अभी पढ़ा था, कहाँ था digestive system? टच करके दिखाओ, टच करो जल्दी से। कहाँ से होता है डाइजेस्ट खाना? शाबाश। स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारा कुछ हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, हमारा या जानवर जिसका भी।
सर्कुलेटरी, सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ। अब मुझे बताओ बॉडी में ऐसा सर्कल सर्कल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है कुमार आयुष, क्या चल रहा है गोल गोल? अनम्यूट, या क्या चल रहा है पुत्र, जल्दी। आई डोंट नो। बॉडी किसकी है आयुष? आयुष की है कि नेबरहुड, फ्रेंडली नेबरहुड की है? हैं? अपनी बॉडी में नहीं पता क्या सर्कुलेट हो रहा है? सिद्धार्थ सीधा बैठो, क्या सर्कुलेट हो रहा है सिद्धार्थ, जल्दी बताओ। अरे अब दिमाग के घोड़े चलने चाहिए, खड़े कर दो सब लोग, कोई सोएगा नहीं। हाँ अब सिद्धार्थ अनम्यूट ही नहीं होएगा क्योंकि आंसर नहीं पता, तो ये मेरे को बहुत बेकार लगता है। रेडमी, यस बोलो पुत्र, क्या सर्कुलेट हो रहा है भाई? बेटा आप अनम्यूट हो, बोलो। मैम मैम ब्लड सेल्स। ब्लड, एब्सोल्युटली राइट। हमारी बॉडी में अगर कुछ घूम रहा है तो वो ब्लड है, जिसमें आपका सारा न्यूट्रिशन है, आपकी ऑक्सीजन है, आपका कैल्शियम है, आपका प्रोटीन है, जिसको जो चाहिए वो ले लेगा, जो बॉडी पार्ट को चाहिए। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम हैज हार्ट। हार्ट इधर है, किसका हार्ट किधर है? जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, लेट मी सी किसका हार्ट लेफ्ट है कि राइट है कि सेंटर में है? लेफ्ट में है, थैंक यू, इट इज नॉट इन सेंटर, ओके, लेफ्ट। So it is pumping your blood and the blood is getting circulated all over your body, right? So this is circulatory system. Respiratory system, सांस ले रहे हैं हम, जो lungs में पूरा cleanse होके हमारे blood में ऑक्सीजन मिल रहा है। Urinary, kidneys और bladders, किडनी में जो भी अगर किसी ने कोई केमिकल खाया है या पॉइजनस चीज खाई है तो पानी के थ्रू किडनीज उसको छन्नी के जैसे फिल्टर करते हैं और वो ब्लैडर से यूरिन बन के बाहर निकल जाता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, नर्वस सिस्टम है सबके पास है राइट? अभी स्पाइन टच करो अपनी, टच योर स्पाइन क्विकली, टच योर स्पाइन। ओके, सबके पास है स्पाइन। ब्रेन टच करो, ब्रेन टच करो। ओके, अपनी टेल बोन टच करो, टेल बोन किधर है सबकी? टेल बोन, टेल बोन, टेल बोन, पूंछ वाली बोन, पूंछ वाली। ओके ठीक है, तो हमारा नर्वस सिस्टम, इसका मतलब पूरा स्पाइन हमारा कनेक्ट कर रहा है हमारे नर्वस सिस्टम को। अब मुझे एक चीज बताओ, अभिज्ञान, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर अभिज्ञान के हाथ में एक बहुत गर्म ग्लास है दूध का और सामने टेबल है और पीछे मम्मा खड़ी है, सो व्हाट विल यू डू? वो ग्लास फेंक दोगे या टेबल पे रखोगे जल्दी से? मैम टेबल पे रख देगी। क्यों? बहुत गर्म है ग्लास तो फिर? यस, ग्लास तो गर्म है तो उठाने क्यों गर्म ग्लास? हाँ लेकिन क्यों रखा आपने टेबल के ऊपर उसको? मैम क्या क्योंकि बोला ग्लास दिमाग गर्म, में? दिमाग में क्या बोला? ग्लास गर्म है, हमारा हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा, और पीछे जो मम्मा खड़ी है उसका डर नहीं लग रहा आपको? मैम क्यों? डर पीछे क्यों लगे? मम्मा is standing, so if you throw the glass there, what will happen? Mama will give you one nice tight, है ना? नो Okay. No, mama will not. No, mama is a friend. Okay. ठीक है, गिरा के देखना पड़ेगा फिर तो, है ना? सो माई पॉइंट इज दैट देखो हमारा ब्रेन कितना स्मार्ट होता है, इट इज ऑल ओवर कनेक्टेड विद योर बॉडी। अगर अभिज्ञान इज स्टैंडिंग देयर, द नर्वस सिस्टम टेल्स, द ब्रेन टेल्स द हैंड्स दैट दूध बहुत गर्म है, फटाफट भाग के रख दे, क्योंकि अगर गिर गया तो पहले तो साफ करना पड़ेगा, उसके बाद मम्मी अच्छे से मारेगी, है ना? सो ब्रेन ने बचा लिया, और वैसे ही आपके लेग्स, आपके हैंड्स, आपके पूरे नर्वस सिस्टम ने वैसे ही बिहेव किया। Okay, so passing the messages around the brain to control your body is the nervous system. Okay, sensory, we also have eyes, ears, nose, skin, everything. But animals का ज्यादा sharp होता है. Reproductive is to, जैसे कल हमने plant reproduction में पढ़ा था, it is to have young ones. Okay, देखो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिर्फ दिखाने के लिए बिना, सब कॉपी मत करने लग जाना है, ये डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है, ये आप मत करना, बस देख लो कहाँ है सर्कुलेटरी। दिस इज योर यूरिनरी ट्रैक से जो एक्सक्रीशन होता है, सो ये किडनीज है आपकी जो पूरा साफ करती है, एंड द होल थिंग गोज आउट। ओके, ह्यूमन स्केलेटन, यहाँ पर प्लीज रिमेंबर हमारे जो एडल्ट्स होते हैं उनकी 206 बोन्स होती हैं, एंड यंगर चिल्ड्रन हैव गॉट 300 बोन्स, धीरे धीरे वो ज्वाइन होकर 206 बन जाती है।
ओके ये यहाँ पर इसलिए डाले बेटा क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में आया है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना. ओके सो वी ऑल्सो हैव अ स्केलेटन टू सेव. देखो यहाँ पर हमारी लंग्स प्रोटेक्ट हो जाती है ना, अपना हार्ट प्रोटेक्ट हो जाता है. कितना अच्छे से रिबकेज बनाया हुआ है नेचर ने, कि कोई अगर ऐसे मारे, अगर सीधा हार्ट पे मारे तो कितना दर्द होगा, है ना, पिचक ही जाएगा हार्ट. तो उसके आसपास रिबकेज है कि वो हड्डियों का स्ट्रक्चर हार्ट को बचा लेता है, क्योंकि हार्ट पूरे ब्लड को पंप कर रहा है. राइट ओके मूवमेंट, दैट इज इट. ये इतना डिटेल में नहीं आएगा. बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द स्केलेटन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अभी हमने पढ़ा हमारा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम. नाउ वी टॉक अबाउट लिम्स. लिम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में, क्या है, आवर हैंड्स एंड आवर लेग्स. दीज आर द लिम्स. ओके एनिमल्स के, डिफरेंट एनिमल्स हैव गॉट डिफरेंट लिम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल डक की बात करी थी हमने, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, डक के क्या होते हैं, दे आर वेब्ड फीट, जिससे पानी बहुत इजीली वो ऐसे ऐसे मूव कर सकती है पानी में. ऑक्टोपस क्या करता है, अपने लिम्स से अपने प्रे को पकड़ के खा जाता है ना, इतने सारे लेग्स होते हैं उसके. सो डिफरेंट लिम्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट एनिमल्स in different ways as per their structure and as per their need. Limbs, हमारे limbs क्या है, legs and hands. अभी मैंने बताया आपको. टेल, पूछ है सबके पास. अभी टेल बोन तो थी, टेल है कि नहीं, नहीं है, चलो अच्छा है, फिर तो मंकीज नहीं है इस क्लास में. अभी देखो हर जानवर अपनी टेल डिफरेंट तरह से यूज करता है. अगर आपके पास भी टेल होती तो आप लटक लटक के पढ़ रहे होते, है ना, लेकिन नहीं है तो अच्छा है, बैठे हुए हो. देखो मंकी यूजेस, ही स्विंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैंगरू इतना हैवी होता है, वो क्या करता है, ऐसे मारता है और फिर जंप करता है, पुश करता है अपने बॉडी को टेल से. राइट क्रोकोडाइल क्या करता है, प्रे को पकड़ के गला दबा देता है उसका. स्कॉर्पियन क्या करता है, बाइट कर लेता है. ठीक, सो ऑल दी एनिमल्स आर यूजिंग द टेल फॉर देयर प्रोटेक्शन. काउज और बफेलोज क्या करती हैं, वो मक्खियां ही भगाती हैं इंडिया में तो, है ना, बाकी फॉरेन कंट्री में तो पता नहीं मुझे. फिशेस क्या करती है, दे स्विम. इफ यू सी बोट को भी ऐसे बनाया जाता है, वो अपनी टेल से दे डिटरमाइन द डायरेक्शन. ओके सो दिस इज हाउ द टेल इज यूज्ड. गॉट इट? सो वी फिनिश द चैप्टर. अभी किसी के कोई डाउट है तो फटाफट बताओ मुझे. यस रेज योर हैंड्स. जिसको डाउट है दैट चाइल्ड कैन स्टे, जिसको डाउट नहीं है दैट चाइल्ड कैन लीव द क्लास. यस अविज्ञान, यस बेटा. Ma'am, my name is not Avigyan, my name is Avyan, Avyan, not G. Okay, never mind. Tomorrow when you join, please read correct it. Okay? Okay. ठीक है बेटा. No issues. That's your, it is. Yes, Siddharth. मैम मुझे ये रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ नहीं आया बेटा. यस मैम. ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा जहां से हम सांस लेते हैं.